structure where we onboard industry partnership in those institutions, definitely logistics courses can be taken up. In fact, our Honorable Prime Minister has mentioned on many occasions that targeting the port industry, it's a sunrise sector where India is taking leadership. Even in ITI courses should be introduced. Accordingly, sir, central government is seized of the matter. State of Andhra Pradesh under PM Setu has already organized the state screening committee. It has informed us that they want to take up one cluster in phase 1, and RFP for the same has also been issued, sir. Say Deependra Huda. जो प्रश्न है ये इसमें मिनिस्ट्री तो स्किल डेवलपमेंट की मिनिस्ट्री है, स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप की मिनिस्ट्री, मगर जो एंड रिजल्ट है वो मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई से भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि जो स्किल डेवलप किया जाएगा वो एमएसएमई मिनिस्ट्री उसको यूटिलाइज करेगी। इस संदर्भ में मैं धन्यवाद करता हूँ मंत्रालय का और मंत्री जी का कि एक वर्ल्ड स्किल रिसोर्स लैब की अभी एक घोषणा हरियाणा के लिए की गई है, ये खुशी की बात है। मेरा प्रश्न और सुझाव मंत्री जी से ये है कि ऑलरेडी एमएसएमई का टेक्नोलॉजी सेंटर एक रोहतक में है जो पहले टूल रूम के माध्यम से, और अब टेक्नोलॉजी सेंटर जिसमें सैकड़ों युवा ट्रेनिंग ले रहे हैं। तो क्या ये वर्ल्ड स्किल रिसोर्स लैब का क्या विजन है जो सेटअप किया जाएगा? क्या एमएसएमई के साथ मिलके एक अच्छी शिक्षा और एक सार्थक शिक्षा की तरफ कदम बढ़ाए जाएंगे? गुड सर, जो एमएसएमई जो कुटीर उद्योग हैं वहाँ रोजगार सृजन की अपार संभावनाएं हैं और केंद्र सरकार की प्राथमिकता है वो सेक्टर। हम लगातार एमएसएमई मंत्रालय के साथ मिलके तालमेल बना के कोशिश करते हैं कि हमारा स्किलिंग का कार्यक्रम उनको टारगेट किया जाए, और बल्कि हमने साथ मिलके विश्वकर्मा पीएम विश्वकर्मा स्कीम भी संचालित होती है, उसमें 3 मंत्रालय होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच में साथ मिलके काम करते हैं। पीएम सेतु में भी मैं आपके माध्यम से सर सदन को बताना चाहता हूं कि एमएसएमई एक टारगेट है जहां किस प्रकार से इंडस्ट्री पार्टनरशिप में एमएसएमई को हम इन्वॉल्व कर सकते हैं। जो इंडस्ट्री क्लस्टर्स हैं जो चिन्हित किए जाएंगे वहां एमएसएमई का एक बड़ा प्रेजेंस हो, और जो नैप्स हमारी नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम है उसमें भी हम टारगेटेड इंटरवेंशन सोच रहे हैं कि किस प्रकार से एमएसएमई में लाभार्थियों की संख्या बढ़ाई जाए। एक विशेष परियोजना को लेकर इन्होंने एक प्रोजेक्ट को लेकर पूछा है, अभी इट इज अंडर डिजाइन सर। क्वेश्चन नंबर 508 डॉक्टर नामदेव किरसान। 508 माननीय मंत्री महोदय, माननीय सदस्य। Thank you, sir. Sir, customers are keeping their valuables in the bank locker. Why the bank liability is limited to only 100 times of the annual rent, even if loss is due to the proven negligence of the bank? Can the government introduce a mandatory, comprehensive and automated insurance policy for all locker contents rather than leaving customers to issue valuables separately? So the reason behind the cover which is given to the locker holders is it is fixed that 100 times sorry sir, it is fixed that 100 times the rental value of the locker is what is given to the locker holders if there is any loss. Obviously, it was based on the criteria that we cannot see what the contents are inside, and that cannot be evaluated, and that cannot be the criteria based on which you can give an insurance cover for them. For each one of them separately is not possible, so it is decided that 100 times is what is given for any loss if there is a locker break-in or something like that. So that was the reason, sir, but at the moment there is nothing before me for any other consideration. माननीय सदस्य। Sir, whatever the valuables kept by the customers, if those valuables have been disclosed to the bank authorities, then in that case, that can be done. There should not be any difficulty in doing that. Sitting and watching the disclosure of a client of what valuables he is going to keep in the locker, that is a breach of banking rules, and the banks wouldn't do that. So that cannot be a measure for me to decide whether there should be a differential coverage. Question number 509, Srimati Josna Charan Das Mahant. Question number 509. माननीय मंत्री महोदय। Laid on the table, sir.
ऑनरेबल मेंबर। अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी के जवाब में CEIB सैटेलाइट के जरिए अफीम की निगरानी करने का जो बात कही गई है, तो मेरा सीधा सवाल है कि जब छत्तीसगढ़ में दुर्ग बलरामपुर में मक्के की ऊंची खेती जब होती है और उसके बीच में अफीम की खेती की गई योजनाबद्ध तरीके से, तो आपका सैटेलाइट इस सिस्टम को क्यों नहीं पकड़ पाया, या ये जानबूझकर सिस्टम अंधा हो गया ताकि खास राजनीतिक सिंडिकेट को फलने फूलने का समय मिले? आपका क्वेश्चन क्या है? सर वही क्वेश्चन। सर क्वेश्चन सर यही है। हाँ, मैं समझ गया क्वेश्चन क्या है। सर, सैटेलाइट का पिक्चर्स भी होते हैं, मगर कानूनन पंचायत स्तर में जो अधिकारी है, पंचायत सरपंच हो, कोई भी हो, और डिस्ट्रिक्ट लेवल ऐसे करके स्टेट लेवल तक, it is the responsibility of every authority to say if there is a between plantation growth of opium. It is a law and order and also a very important national security aspect. So it is not just the satellite imagery, but it is also the responsibility of every elected representative in that area. माननीय सदस्य, मैं मानती एक मिनट हूँ, माननीय सदस्य, लेकिन एक मिनट। हम सब देश की लोकतंत्र की सबसे बड़ी संस्था संसद में है। हमें प्रश्न पूछते समय एक विषय की गंभीरता भी होना चाहिए। टारगेट कर करके एक ही व्यक्ति, एक ही सरपंच, ये प्रश्न संसद की मर्यादा के अनुकूल नहीं है। जानकारी मांग रहे हैं। किसी, देखिए, आप गलत समर्थन मत कीजिए। किसी एक ग्राम पंचायत, एक सरपंच, ये टारगेट नहीं। आप जनरल, ये खेती नहीं होना चाहिए, इसको पकड़ा जाना चाहिए, जनरल विषय होना चाहिए। मेरा कहना है माननीय सदस्य। सर, जो मंत्री जी ने कहा है, लेकिन ये बात सही है, लेकिन जब जनवरी में वहाँ के बलरामपुर के सरपंच ने जब इस कार्रवाई की सूचना दी, तो उस पर संज्ञान, सुनिए ना सर प्लीज, तो उसको उन्होंने नहीं सुना, और अभी मार्च में उन्होंने दूसरे सप्ताह में उस पर कार्रवाई की। तब तक कि अफीम फल भी गया था, फूल भी गया था और कट भी गया था। तो इसको इस प्रशासनिक मिलीभगत कहा जाए, इसे क्या कहा जाए? I understand and appreciate the sensitivity. जवाब दे रही हूँ जी मैडम जी का प्रश्न के लिए। I fully appreciate the sensitivity with which the honourable member is raising an issue pertaining to her constituency, and also because Afeem is such a commodity, we have to be extremely cautious. She is right in saying in January itself it was informed. Why did it take so long? We have to improve efficiencies, there's no doubt. But it is not as if that it is only in that area we have delayed or anybody has delayed it. So I would work to have this more efficiently done, but I agree with the member that it was delayed. श्री तापिर गांव। Thank you, Honorable Speaker, sir. Honorable Finance Minister is fully aware of my parliamentary constituency, Eastern Arunachal, border to Myanmar. We have got 3-4 districts. ब्रिटिश ज़माने से ओपियम कल्टीवेशन वहाँ ट्राइबल का परंपरा बन के रखा है, लेकिन नारकोटिक ब्यूरो ऑफ इंडिया जो है हर साल जाके वहाँ कत्ल होता है। तो मैं मंत्री जी से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ओपियम कल्टीवेशन को लीगलाइज करके वहाँ का ट्राइबल जनजातियों को सुविधा देने का अवसर है कि नहीं है? आपके साथ एक सवाल इधर है, एक सवाल सर, अफीम कल्टीवेशन के ऊपर निगरानी बहुत आवश्यक है, particularly in border areas, particularly in till now Naxal affected regions. इसके ऊपर निगरानी सख्त भी रहना चाहिए, मैं मानती हूँ, मगर अब किसी और क्षेत्र जैसे राजस्थान में होता है, आपको आपके इलाका है सर, जैसे मध्य प्रदेश में होता है और थोड़ा कम कहीं उत्तर प्रदेश में होता है, इसके अलावा कहीं और रेगुलराइज करने का या लीगल कल्टीवेशन का कोई प्रस्ताव मेरे सामने नहीं है। क्वेश्चन नंबर 510
श्री देवेश साक्य। क्वेश्चन नंबर 510। माननीय मंत्री महोदय, पटल पर प्रस्तुत। माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जनपद एटा में 320 मेगावाट की जवाहर तापी परियोजना का CSR आय के सापेक्ष क्षेत्रीय विकास का व्यय कितने % है और 2023-24, 24-25, 25-26 में खर्च क्यों नहीं किया गया। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से ये भी कहना चाहता हूं कि विपक्ष के सांसदों के साथ भेदभाव न करें, समानता का व्यवहार रखें। क्या समानता का व्यवहार होगा कि नहीं होगा? माननीय बिल्कुल सही बात है। आदरणीय सदस्य ने CSR के संबंध में जो प्रश्न पूछा है वो एरिया स्पेसिफिक है और मैं ये बताना चाहता हूँ कि CSR किसी भी कंपनी का बोर्ड ड्रिवन प्रोसेस है। उनकी CSR कमेटी ये तय करती है कि किस मद में कितना पैसा खर्च करना है और किस क्षेत्र में पैसा खर्च करना है और उसके लिए स्पेसिफाइड रूल्स हैं जिसके अंतर्गत वो काम करते हैं। इसलिए ये कंपनी तय करती है। इसमें सरकार के द्वारा सिर्फ इतनी मॉनिटरिंग की जाती है कि जिन कंपनीज को CSR खर्च करना है क्या वो खर्च कर रहे हैं और वो भी डिस्क्लोजर बेस है। तो इसलिए कुछ और स्पेसिफिक जानकारी हमने प्रश्न के उत्तर में दी है इनके जिले से संबंधित। माननीय सदस्य। मानवर, भारत की महारत्न कंपनियों में CSR फंड कितना है और इसको किस क्षेत्र में किस कार्य में लगाया जा रहा है? क्या जनपद औरैया में गेल और NTPC ने अपने CSR फंड से कितना व्यय किया है? क्या जनपद की सबसे बड़ी तहसील विधूना में के कुछ क्षेत्रों में इससे कुछ कार्य कराए जाएंगे या नहीं? मैंने पहले प्रश्न के उत्तर में भी ये बात कही थी, उसमें मैं सिर्फ इतनी ही जानकारी इनको देना चाहता हूं कि जो कंपनीज या कोई विशेष कंपनी है ये उनका अपना प्रेरोगेटिव है। उनका बोर्ड और CSR कमेटी डिसाइड करेगी कहां कितना पैसा खर्च करना है। जहां तक उन्होंने कितना पैसा खर्च किया इसकी जानकारी हमने इनको दी भी है और भी स्पेसिफिक किसी जिले की या किसी मद की मांगेंगे तो हमारे पोर्टल पर अंकित है। हम